students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, this one is your English textbook for class 11th Hornbill core course. Now today we will start our first chapter of our reader book. The first chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Now here students, while reading this chapter you have to notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. कि जो आपको नोटिस करना इन एक्सप्रेशंस को, लाइक द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, an expanse of pure white serenity, a turning point, accepted her seclusion with resignation, a veritable bedlam of chirpings, frivolous rebukes, and the shagging skin of the dilapidated drum. Students, this is the story about where Khushwant Singh write about her grandmother. इस चैप्टर में उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताया है. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट मीन्स होता है स्टूडेंट्स तस्वीर, एक महिला की तस्वीर. तो वो महिला कौन थी? द लेडी वॉज खुशवंत सिंह grandmother. In this chapter, students, he describes his 3 phases of relationship with his grandmother before he left the country. कंट्री को छोड़ के जाने से पहले उनका जो रिलेशन था अपनी ग्रैंडमदर के साथ, उसको उन्होंने 3 फेजेस में डिस्क्राइब किया है. इन द फर्स्ट फेज में उन्होंने बताया कि they were quite revolting since he has seen his grandmother with wrinkled face to 20 years and he didn't believe that she had been young, pretty and had even a husband, though the children had been seeing their grandfather's portrait hung on the drawing room wall. Now she after told the author about the games she used to play in her childhood. Now, according to the author, she had always been short, fat and slightly bent and so did that she couldn't have Graham older. She had stayed at the same age for 20 years. She had been regularly telling the beads of a rosary. She always did the prayer in monotonous and inaudible way. Now, in the second phase, the author and his grandmother were very good friends. His parents left home with her when they went to live in the city. She used to wake him up in morning, get him ready for school, bathed him, dressed him, and after the breakfast, accompanied him to the school. Now, she would read and the scriptures her and come back home with him after the school. And she helped him daily in his study. And in the third phase, brought changes in their relationship. When his parents were comfortably settled in the city, they were sent for to the city. That was a turning point in their friendship. Although they were living in the same room, his grandmother no longer accompanied him to school. He used to go to an English medium school in a school bus. Students, in this chapter, he described all the features of her grandmother. उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के सारे फीचर्स को, जो बचपन से उन्होंने उनको देखा था उस और उनके क्या थॉट्स थे उनके बारे में, उसको उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है. नाउ इन दैट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, ही टेल्स दैट, इसमें वो बताते हैं कि जो उनकी दादी थी वो सभी की, जैसे सभी की दादी माँ होती हैं, एक वृद्ध महिला, बूढ़ी औरत. तो 20 सालों से मैं जो दादी माँ को जानता था वो एक वृद्ध महिला ही थी. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और लोग उनके बारे में कहते थे कि वो कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी. उनका एक पति भी था, लेकिन मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं होता है. तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये इसी के लिए कहा गया है कि वो उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे कि वो कभी, जो उनकी दादी माँ थी, वो जवान भी थी और सुंदर थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दादाजी को ऐसे देखा नहीं था. सिर्फ उनका एक जो फोटो था, पोर्ट्रेट था, वो उनके कमरे में लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और खूब ढीले ढीले कपड़े पहने हैं, लंबी सफ़ेद दाढ़ी है.
तो इस तरह से उन्होंने अपने दादाजी को डिस्क्राइब किया है। तो उनकी फोटो देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके कभी कोई पत्नी या बच्चे रहे होंगे। वो ऐसे दिखते थे उस फोटो में कि उनके बहुत सारे नाती पोते हैं। तो जहां तक दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, तो ये हमेशा उनको रिवोल्ट करता था जब वो उनको अपने बचपन के खेलों के बारे में बताती थी कि जब वो बच्ची थी कि वो बचपन में क्या क्या खेलती थी। इन दैट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, शी डिस्क्राइब दैट कि वो जब छोटी थी, वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और जो सामने की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई थी। तो उनके चेहरों पर आड़ी तिरछी झुर्रियों का एक जाल सा बना हुआ था। लेकिन जब से मैंने उन्हें देखा था, हम उनको जानते थे, वो वैसी ही दिखती थी। वो उतनी ही बूढ़ी थी और अब उससे ज्यादा बूढ़ी वो हो नहीं सकती थी। तो वो कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। वो घर में, पूरे घर में लंगड़ाते हुए चलती थी। एक हाथ उनके कमर पे होता था और एक हाथ में उनका माला होता था जिसे वो जपती रहती थी। जो उनके सफेद बेतरतीब बाल थे, उनके उदास और धसे हुए चेहरे पर बिखरे होते थे। और जो उनका होंठ थे, वो हमेशा मंत्रों को, प्रार्थना को बुदबुदाते होते थे। तो वो उस समय सर्दियों का जो पर्वत होता है ना, जो बहुत सफेद होता है, स्वच्छ होता है, शांत दिखाई देता है, वो वैसी ही लगती थी। सो दैट लाइन एक्सप्रेस दिस। तो जो इनकी दादी माँ थी और ये थे मीन्स खुशवंत सिंह, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब इनके माता पिता बाहर गए थे शहर में, तब उस समय ये दादी माँ के पास ही थे। तो दादी माँ इनका सारा काम करती थी, सुबह उठाना, स्कूल के लिए तैयार करना, कपड़े पहनाना, फिर नाश्ता कराकर उनको स्कूल छोड़ने जाना। और स्कूल जब तक वो जाते थे तब वो भी वहां पर ही बैठी रहती थी। अब जब इनके पेरेंट्स जो थे वो शहर में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए, तब इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट आया जिसमें इनकी जो दोस्ती थी उसमें एक नया मोड़ आया कि वो भले ही एक कमरे में रहते थे, लेकिन जो दादी माँ थी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि जो ऑथर हैं वो एक अंग्रेजी स्कूल में जाते थे और बस में जाते थे। क्योंकि जब तक वो गांव में थे दादी के साथ, तब तक दादी माँ उनको साथ में स्कूल लेकर जाती थी। वो, और जो उनका स्कूल था एक मंदिर से लगा हुआ था। बहुत समय बीत गया कि वो बहुत कम ही एक दूसरे को देख पाते थे। वो अभी भी उन्हें सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी और स्कूल से आने के बाद पूछा भी करती थी कि क्या है, लेकिन वो उस समय उनकी मदद नहीं करवा पाती थी, क्योंकि उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, पृथ्वी गोल है, ये सारी चीजें जब वो बताते थे कि हम ये पढ़कर आए, तो उनको बहुत ज्यादा वो अपसेट होती, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में उन्हें मालूम नहीं था। इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, जब उनका एडमिशन विश्वविद्यालय में हो गया, तब उनको एक प्राइवेट रूम दिया गया। तब उस समय उन दोनों के बीच जो सामान्य जुड़ाव था वो एकदम से टूट गया, क्योंकि पहले वो एक ही कमरे में रहा करते थे, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी गए तब वो एक अलग कमरे में। तो दादी माँ ने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया था। हियर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन। वो अपना जो उनका डेली रूटीन था वो सारा अपना करती थी। तो जो सनराइज से सनसेट तक का टाइम था वो अपने चरखे पर रहती थी और वो उनका जो प्रार्थना था वो चलती रहती थी। सिर्फ दोपहर के समय वो क्या करती थी, चिड़ियों को खिलाती थी। तो अपने बरामदे में बैठती थी और उस समय पर छोटे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके, तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर जो चिड़िया थी वो इकट्ठी होती थी और उनकी चहचहाहट से जो पूरा कमरा था वो गूंजने लगता था। हियर अ वर्टिबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। तो कुछ उनके कंधे पे बैठती थी, कुछ उनके पैर में बैठती थी और बहुत सारे समय तक वो वहां रहती थी। वो टाइम दादी माँ के लिए बहुत अच्छा होता था। फिर मुझे अब्रॉड जाना था। अब्रॉड में 5 साल के लिए जाना था। तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय पर जो दादी माँ हैं तो वो नाराज होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज को स्वीकार किया और वो मुझसे मिलने स्टेशन भी आई और उन्होंने मेरे माथे को चूमकर मुझे आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद जब मैं 5 साल बाद आया तब भी वो मुझे लेने आई स्टेशन पर, और उस दिन वो मुझे उतनी वृद्ध नहीं दिख रही थी, मतलब उतना ज्यादा वो ओल्ड नहीं थी। तो उस समय जब वो कंटिन्यू अपनी प्रार्थना जो थी वो उसको कर ही रही थी, यहाँ तक कि उनके आने के एक दिन पहले
उन्होंने कुछ जो खुशी के पल थे उस समय पर उन्होंने चिड़ियों को खिलाने में कुछ ज़्यादा देर तक अपना जो टाइम था वो बिताया था। तो शाम के टाइम जब वो ऑथर जो है वो वापस आगे पढ़ाई करके, तो उस टाइम पर उनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की और पड़ोस की सारी लेडीज को इकट्ठा करके वो बहुत देर तक ढोल गाने बजाती रहीं। तो उस समय पर क्या हुआ, दूसरे दिन उनको हल्का सा बुखार आया, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये बुखार जो है वो उतर जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने हम सबको बताया कि अब जो हमारा मेरा अंत है वो नज़दीक है, तो मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना जो थी वो फिर से शुरू कर दी और थोड़ी देर में ही वो प्रार्थना करते करते धीरे से उनके जो होंठ थे वो बंद हो गए और उनके हाथों की जो माला थी वो नीचे गिर गई, जिससे हम सबको पता चल गया कि वो अब उनका जीवन समाप्त हो गया और अब वो यहाँ पर नहीं रही। तो रीति के अनुसार उनको पलंग से नीचे लेटा दिया गया और उनको ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया गया और बहुत देर तक विलाप करने के बाद फिर सब उन्हें अकेला छोड़कर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो जब तैयारी करके वो उनको लेने आए कमरे में, तब वो क्या देखते हैं कि जिन चिड़ियों को वो दोपहर के समय पर खाना देती थी, तो सैकड़ों की मात्रा में पूरे बरामदे में और पूरे कमरे में जो चिड़ियां थी वो एकदम लटकी हुई उनके पास बैठी हुई थी। तो माँ ने, उनकी जो माँ थी ऑथर की, उन्होंने रोटी के टुकड़े जिस तरह से दादी देती थी उस तरह से छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके वहां पर डाले खाने के लिए, लेकिन एक एक भी चिड़िया ने उन दानों को मुंह नहीं लगाया और वो वैसी की वैसी ही वहां पर पड़ी रही। जब उनकी दादी माँ को वहां से ले जाया गया, उसके कुछ घंटों बाद वे सारी की सारी वहां से उड़ गई। मतलब ये कि उनकी दादी से वो चिड़िया इतनी लगाव हो गया था कि वो तक उनको लास्ट की विदाई देने के लिए आई थी। फिर दूसरे दिन जो स्वीपर आया और उसने जो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे उनको धीरे से समेटकर और डस्टबिन में डाल दिया। सो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस चैप्टर द ऑथर डिस्क्राइब्स द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कि उन्होंने अपनी दादी माँ का किस तरह से एक चित्र हमारे सामने बनाया है। उन्होंने इस अपनी राइटिंग के थ्रू उनका पूरा एक पोर्ट्रेट हमारे सामने रखा है, दैट व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अवर ग्रैंडमदर. So students, you have to read this chapter and try to find out the questions of that lesson.